Okay, so yesterday we have seen the क्या हुआ था? Okay. Now today we will see the cases. So I have given some few cases here. छोड़ता वो सब वही अरे हाँ देवनाथ नहीं तो खा तो सकती So sorry for interruptions. इंटरनेट cases बराबर नहीं था इसलिए लॉग आउट हुआ था. होता तो अपन काला पाई दोनों तरफ को लगा Mute फिर रखिए. ये लोगों के भी नहीं Okay. Okay. So few cases sir has given here for the practice how to use the rubrics according to Mahatma. So first case, using Mahatma in analysis and prescribing, it is given on page number 212. Yes. So the third book, the end of my assumptions of Mahatma. We are reading the chapter number 20, I think 28, picking up rubrics for simillimum with the help of Mahatma. So illustrative case, 5 years male child comes with the complaint of weakness in legs and calf muscles while walking, pain in the legs since 6 to 8 months, weakness in legs since 3 to 4 months, started 1 year back, wants the mother to lift him up while walking, diagnosed as retained Duchenne's muscular dystrophy. CPK level was 2016 units when normal level should be between 24 to 95. Constipation has to strain a lot and remove mechanically. Stools once in 2 to 3 days. Other complaints like recurrent cold coryza, cough since 3 years, a running nose, irritation and cough aggravated change of weather and strong odor. Omitting while coughing since 2 years. Taken allopathic treatment, appetite poor, likes hot food, thirst normal and thermal hot. Perspiration profuse around head, dripping even in AC. Craving for chocolate and ice cream. Aversion to sour. These are the chief complaint and physical generals. So he was hot, he was having normal thirst, likes hot food, desire for chocolate ice cream, aversion for sour. Okay, so mentals of this patient, sensitive child but get hurts fast, sensitive to refinements. So this is sensitivity, so it is sora. If there is only one place, one piece of bread and the mother gives it to him and not to elder sister, he feels bad and gives his own piece to the sister, that is sympathetic against Sora, sentimental, Sora. So this sensitivity is marked especially regarding food. If mother gives a piece of bread to him and his sister and the sister throws it away, he feels very bad and he scolds her or even beats her. That is again the sensitivity.
What will the mother feel? That is angry, Sora. So he is sensitive, but reaction is anger. So if he has two pieces of bread and nothing is given to his pet dog, he will give his share to dog. Love for animals is again Sora and psychosis. Love, psychosis here because of love. Sensitive to noise and crackers, but loves music. Sensitive to noise and crackers. Cracking sounds के लिए sensitive है, but loves music. Sensitive to noise, music ameliorate. That is Sora. Fear of giant wheels. Yes. Not because of the motion, but gets frightened when it reaches the top. That means fear of high places. Very much frightened when it is climbing. Fear of heights, psychosis. Very short tempered. When angry, he beats and bites his sister. Biting it is cruelty, syphilis. Shouts back at his father, grandfather, and grandmother. Doesn't like his father. Says he is like a splinter. Rudeness in children. Hatred, that is syphilis. Right from birth, he is obstinate child. Obstinate is psychosis. Outside the house, very shy and timid. Timidity, it is Sora, psychosis. Very careful while crossing the road, cautious, yes, psychosis, Sora. Very intelligent child, interested in studies and knowledge, intellectual psychosis. Very much particular about his studies in school, known as good, obedient, and conscientious child. Conscientious about trifles is Sora psychosis. Though religious, doesn't like to pray to God or do any rituals. Religious. Dressing habits, always well dressed, full shirt, full pant. He tries to behave like a matured man, is also again a psychosis. His flaws are always kept in place. His books are always kept in place and are very tidy. Doesn't like anybody touching it. Does not misplace things. Very much possessive about his things. And nobody should touch his things. Fastidious psychosis. Destructive of toys. Destructiveness is syphilis. Can't see cruelties and blood. Very much sensitive about animal. Can't see animal in pain or even human being in pain. That is sympathetic. Sympathetic to cruelty to animals is psychosis. About hobbies, he is very artistic and has won many prizes in drawing and painting. Very creative, artistic aptitude, psychosis. Playing on computer. Crazy about cars, psychosis. Speed fast. Very much restless. More attached to mother. Mother's history was history of asthma during pregnancy, taken allopathic treatment. So this was history. Now the analysis. Journey of disease. सबसे पहले क्या हुआ? तो recurrent cold coryza, that is the endoderm sora. Then running nose, irritation, and it is endoderm sora. Vomiting while coughing, endoderm sora. Pain in the legs, mesoderm sora. Swelling of calf muscles, pain in muscle is mesoderm sora. Weakness of legs, mesoderm sauropsychotic. So DMD or Duchenne muscular dystrophy is a genetic disorder. It is characterized by cramps in the calf muscle, increase in size of the muscle, progressive weakness in first the calf muscle, then ascending to upper muscle,
until his gait changes to weddling gait, chest and abdomen gets protruded. It becomes impossible to rise from squatting position. Yes, like finally ends with respiratory muscle. This disease pathology starts with this deactivation of a gene which produces dystrophin. Dystrophin is a protein which protects the muscle from injury. Interestingly, this insufficiency of production starts in calf muscle and gradually proceeds to opposite of Hering's law direction. Yes, that means this disease always go from below upward. It begins between the age of 4 to 7 years. Universally, there is no treatment for it. Once it has set in, three stages are seen. And which are these three stages? First, the muscle gets inflamed, that is psora. Due to any infection that may injure the muscle in absence of dystrophin, here it was because of respiratory tract infection being transferred from endoderm to mesoderm, that is muscle connective tissue level. Secondly, there is a false increase in cell mass, that is psychosis. Thirdly, the muscle gets gradually destroyed, that is syphilis. If at all a child of DMD has any hope, it is in homeopathy, and that too, if anything can be done at a stage one of inflammation, that is or psora. First of all, if these are genetically pre-diagnosed DMDs in when it runs through the family, homeopathy can prevent द डिजीज. यस, तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे कि उनके हर जनरेशन में डीएमडी का पेशेंट, हर जनरेशन में, और जो जनरेशन मेरे पास आया था उस जनरेशन में 5 से 6 पेशेंट उनके घर में डीएमडी. तो इस टाइप का भी पेशेंट मैंने देखा. तो सर कहते हैं डीएमडीज इन वेन इट रन्स थ्रू द फैमिली, होम्योपैथी कैन प्रिवेंट द डिजीज. आगे के जनरेशन के लिए प्रिवेंट करने के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छा हेल्प करती है. सो immune impairment from reaching the third or mesoderm connective tissue layer. See chart of suppression in the book Theory of Suppression. The deactivation of gene of dystrophin can only occur if the immune impairment reaches the muscle. That is, if a child is suppressed with allopathy or homeopathy, if right genetic constitutional simillimum is prescribed, that means a remedy which will take into consideration the genetic traits of the individual is prescribed. There is a remote possibility of saving this child. The GCS includes the mental makeup, physical makeup, the general makeup, disease makeup, all of which are defense makeup or mild. Yes. So this is the introduction of DMD. So, what is mental makeup of this patient? किस तरह का पेशेंट का माइंड था, मेंटल मेकअप था, उसके विल्स, नेचर. So, innate genetic characters and should be represented in the form of will, intellect, morals, diligence, independence, sensitivity, and expressiveness. So, disease attributes, physical makeup is made up of structure, height, build, weight, shape of face, structure of hair, skin. General makeup is made up of tolerances to sun, wind, moon, rain, tolerance to heat and cold, thirst, sensitivity to noise, light, touch and smell. So mental makeup में हमें क्या कंसिडर करना है, फिजिकल मेकअप में क्या कंसिडर करना है, जनरल मेकअप में क्या कंसिडर करना है, तो सर ने यहाँ पॉइंट्स दिए हैं. So in the above, the child first the disease stage was taken into consideration. This was beginning of DMD, which is predominantly psychosyphility
as the name pseudohypertrophic muscular dystrophy suggests. By our understanding of the miasm, now we understand that this constitution is defending itself or genetically been programmed to defend itself by bringing about at first by inflammation. So the first stage, that is the inflammation physiologic stage, is the defense mechanism at the first. स्टार्टिंग में बॉडी किस तरह से डिफेंस कराती है, तो थ्रू द इंफ्लामेशन, दैट इज सोरा. So this is defense mechanism of body. So construction hypertrophy is second defense and the destruction is third defense syphilis. At the pathological level, mind and body talk the same language because both are governed by the same genetic code, mind and body. So this means the mind must also have developed some characteristics which will defend itself. Yes, mind also have characteristics according to miasm, according to defense. तो किस तरह से माइंड डिफेंस करता है? Sorocally, yes, psychotically and syphilitically. But at this stage, the disease was not fully established. It is only the starting of disease, that is the SORA, first defense mechanism, first stage of defense mechanism. So, but at this stage, the disease was not fully established and it defending physiologically as there was only pains and cramps. So, किस तरह से डिफेंस करता है? तो थ्रू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी स्टेज, एंड इन्फ्लामेटरी स्टेज के सिम्टम्स है पेन, क्रैम्प्स, है ना, डोलर, पेलर, like this. So thus I have to consider the mentals of this child which are the soric tail and psychotic hue predominantly. These mental rubrics can be used as eliminatory rubrics because the simillimum will have to cover them. Then and only then it becomes a genetic constitutional simillimum. This of course will and should include the thermal, the thirst, desires and aversions. Yes. So इसके साथ साथ मेंटल मेकअप के साथ साथ हमें जनरल मेकअप, फिजिकल मेकअप के भी सिम्टम्स कलेक्ट करना है. So in the above case, the following soric and psychotic symptoms were considered. So which symptoms are considered here? Mental makeup. In mental makeup, will of this child was timid, that is SORA. Intellect, very intellectual, that is creative and artistic psychosis. Morals, conscientious, very sympathetic, that is conscientious SORA. Sympathetic is SORA. Defense was fastidious, is psychosis. Sensitivity, sensitive to rudeness, SORA. This is the mental makeup of this child. And the general makeup was, he was hot, thirst was normal, craving for chocolate ice cream, perspiration profuse, and physical makeup, lean, thin child. So these are three makeups of this child, and according to the GCS, we have to consider all three makeups with their defensive rubrics. Yes. So which are rubric sir has taken here are timidity, artistic aptitude, conscientious about trifles, sympathetic, fastidious, sensitive to rudeness. Yes. So the only remedy which comes up on repertorizing is carcinosine. And the confirmatory point of carcinosine is craving for ice cream and chocolate, sensitive to noise, music ameliorates, fear of high places, love to animals, cruelty and inhumanity, syphilis. So this is carcinosine. So destructiveness is syphilis. If this case was to progress to psychosis and further into syphilis, then the mind would also change towards psychosis and syphilitic mental. अगर यहाँ syphilis
सर का कहना है कि अगर यहाँ सिफिलिस कुछ होता था, डिस्ट्रक्टिवनेस अगर उस बच्चे में स्टार्ट होता था, उस मसल्स में स्टार्ट होता था, तो सर को यहाँ सिफिलिटिक रूब्रिक कंसिडर करने होते थे। सो यहाँ पे सोरो साइकोटिक रूब्रिक्स लेके सर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, दैट इज द कार्सिनोसिन एंड कार्सिनोसिन हैविंग ऑल थ्री माइजम सोरो साइकोसिफिलिस। सो आफ्टर carcinosin single dose, first follow-up was appetite improved, pain legs decreased, weakness decreased. After 4 months, suffered chickenpox. Yes, chickenpox in the course of chronic diseases, measles, chickenpox, smallpox. These are viral acute diseases, but ऐसे केसेस में, ऐसे डिजीज में पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो हमें भी डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर क्रॉनिक डिजीज कोर्स में अगर कोई एक्यूट डिजीज आता है, कि एक्यूट सफरिंग आती है या फिर वायरल डिजीज आता है, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ, मिजल्स हुए, मम्स हुए। सो दिस इज क्या करना चाहिए? यस, बोलिए। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? जब कोई एक्यूट इन्फेक्शन आता है, एपिडेमिक आता है, या फिर वायरल कुछ एक्यूट इन्फेक्शन और वेट एंड वॉच करना चाहिए, आपने जीसीएस दिया है, यस, वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच, बट हाई ग्रेड फीवर होता है इन मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स में हाई ग्रेड फीवर है ना। चिकन पॉक्स इट्स फिजियोलॉजिकल स्टेटस, वो आना ही चाहिए। सैकलेट दे सकते हैं ऐसे केस में। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस होते हैं, ये वायरल डिजीज होते हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं, अपने आप क्योर होते हैं। इसलिए ऐसे डिजीज में हमें कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, गिव द एसर एंड टेक द क्रेडिट। यस, क्योंकि ये अपने आप क्योर होगा। पेशेंट हमारे पास तभी आएगा जब उसकी क्योरिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई होती है, क्योंकि जब स्किन पे इरप्शंस आते हैं मोस्टली पेशेंट उसी वक्त आते हैं। तो स्किन पे इरप्शन आना, दैट इज द एक्सटराइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब क्यूरिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हुई है। तो हमें ओनली एसएल देके वेट एंड वॉच करना है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है। और अगर बहुत ही फीवर है, कंटिन्यूस फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो सिंपली एंटीपायरेटिक आप दे सकते हैं, लाइक अ सिंपल क्रोसिन, बट वो भी सोच समझ के अगर आप वेट करते तो वेल एंड गुड। यस, सो ऐसे केसेस में, क्योंकि ये बैक्टीरियाज, डिजीज, ट्यूमर वायरसेस, सॉरी बैक्टीरिया वायरसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना। सो इसीलिए इनको कुछ नहीं करना है। सो सफर्ड चिकन पॉक्स, थ्रोट पेन, बैक टू सोरा, वोमिटिंग, कफ एंड फीवर, एंड CPK was 1 day. The child is normal up to the date and goes for mountaineering, climbing. So this is a case how to select rubrics according to defense mechanism according to Mahayana. बहुत अच्छी केस सर ने दिया, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। केस बहुत सिंपल थी, रुब्रिक बहुत सिंपल थे, लेकिन किस तरह से हमें डिफेंसिव प्रोसेस को कंसिडर करके रूब्रिक्स लेना है, इस केस में से सीखने को मिला, राइट। सो अभी इस पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस डॉक्टर रवि। तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं लेना है? डीएमडी का केस है, जेनेटिक डिसऑर्डर, डीएमडी का केस है, प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं लेना है? प्रेगनेंसी, हाँ, हिस्ट्री। ये एक्चुअली आफ्टर द बर्थ हुआ है और 4 साल बाद हुआ है, तो हमें उस टाइम के जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है वो कंसिडर करना है, रिएक्शंस, जेनेटिक डिस्पोजिशंस कंसिडर करना है। प्रेगनेंसी हिस्ट्री में अगर
तुरंत कुछ होता है बर्थ के बाद तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री, या फिर प्रेगनेंसी हिस्ट्री में मतलब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है और पेशेंट जैसे कि एबनॉर्मल है, तो हमें प्रेगनेंसी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास एक पेशेंट है, उसके पहले भाई को डीएमडी था, फिर जो मेरा पेशेंट है उसको डीएमडी है। अब इसमें तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेनी ही पड़ेगी ना। अब यहाँ और पे प्रेगनेंसी हिस्ट्री के से भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उसकी फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि ये जीन म्यूटेशन आया कहाँ से, जो जीन डिफॉल्ट हुआ है ये कौन से जनरेशन से हुआ है, तो उस जनरेशन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन मतलब सर मदर हिस्ट्री उसके भी पीछे जाना पड़ेगा उसके दादी की हिस्ट्री, नानी की हिस्ट्री, यस यस, परदादी मदर की। की, परदादी की, परदादी। ये तो काफी पीछे चला जाएगा सर। यस, तो ऐसे केसेस जो जिनमें कंटिन्यू 2-3 जनरेशन से आ रहा है कंटिन्यूसली, तो आपको जिस जनरेशन में ये स्टार्ट हुआ उस जनरेशन के क्लूज, हिंट्स आपको लेने पड़ेंगे, किस तरह का एटमॉस्फेयर था उस प्रेग्नेंट वुमन के। यस, ठीक है सर। सर वो कल का वाइपेरिया का केस था सर, थोड़ा सा उसके बारे में पूछना था। जी कल बोलिए। का वाइपेरिया, जैसे आपने बोला कि वोमिटिंग फूड इमीडिएटली, तो वो न्यूक्लिक में वाइपेरा नहीं है। और फिर जो सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म उसमें भी वाइपेरा नहीं है। फिर यस, जैसे आपने डिलीरियम लिया वोमिटिंग, अगर डिलीरियम देखा जाए तो वोमिटिंग के साथ कुछ मेंटल सिम्टम आना चाहिए, तब अपन डिलीरियम वोमिटिंग विद ले सकते थे। तो केवल डिलीरियम वोमिटिंग विद में केवल वाइपेरा है। तो ये वोमिटिंग डिलीरियम। के साथ उस पेशेंट को कुछ सेंस ही नहीं था क्या हो रहा है, वो इतना मतलब उस कंडीशन में था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ क्वेश्चन पूछे तो कोई जवाब नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब उसके कंडीशन ही नहीं थी बताने के, दैट इज द डेलीरियस कंडीशन। लेकिन सर अगर इसको वैसे देखा जाए तो फिजिकल में अपन ले सकते हैं ना कि ये वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, वॉमिटिंग विद, उसका जो जितना वीकनेस था, जितना वो बोल ही नहीं पा रहा था, तो अपन सीधा फिजिकल जनरल से घुस सकते हैं ना उसमें यस, से। फिजिकल जनरल्स में वीकनेस तो था ही उसको, लेकिन हाँ। वीकनेस ऐसे कंडीशन में अगर उसको कुछ गया ही नहीं तो वीकनेस तो आना ही है, नेचुरल है ना, राइट। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो डिलीरियम वॉमिटिंग विद लिया था, सो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेंटल जो आप बता रहे हो, तो मेंटल में कुछ तो आना चाहिए, ओरिएंटेशन कुछ गड़बड़ होना चाहिए या कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए ना, तब अपन डिलीरियम लेंगे ना, ओके काउंट करेंगे। ओके ओके ओके, तो आप मुझे डेलीरियम ओमिटिंग विथ इसका मीनिंग बता दीजिए क्या है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। डिलीरियम का अगर ऐसे देखा जाए तो अल्टरनेशन इन द कॉन्शियसनेस, मतलब कि ओरिएंटेशन प्लेस हो गया, टाइम हो गया, पर्सन, अगर वैसे देखा जाए मीनिंग वाइज। और इसका वॉमिटिंग से कनेक्शन, तो वो दोनों एक साथ समझ में नहीं आ रहा वो ओमिटिंग की वजह से डेलीरियस स्टेज में गया ना। है। वो उसको वीकनेस ले लेंगे फिर अपन। नो नो, वीकनेस वहां पे वीकनेस जो है वो डिजीज सिम्टम हो गया उसके, बिकॉज ऑफ कुछ खाया नहीं 8 दिन से 10 दिन से, ओनली वो आईवी फ्लूइड पे था, उसकी वजह से वो वीकनेस था। लेकिन जो कंडीशन उसके माइंड को कवर कर रही थी, जिस जो मतलब माइंड उसका जिस कंडीशन में गया बिकॉज ऑफ वोमिटिंग, इसलिए वो डेलीरियम आ गया, मतलब इसलिए वो डेलीरियस कंडीशन हो गई उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। तो डेलीरियम का मतलब होता है कि अ मेंटल स्टेट इन विच अ पर्सन इज कंफ्यूज एंड हैज रेड्यूस्ड अवेयरनेस ऑफ देयर सफरिंग। मैंने बोला कि ये पेशेंट को मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी, मतलब वो उसे अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा था कि क्या तकलीफ हो रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उसके पेरेंट्स ने सब हिस्ट्री दी, और ऐसी कंडीशन की जैसे कि अब ये थोड़ी देर में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, इतना ऐसा, मतलब वो जब उसको नौशिया टाइप होता था, अपन बोलते ना कि ड्राई वोमिटिंग जब होता, कंटिन्यू ऑफ कर रहा था, और
बिल्कुल गर्दन डाल दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि कैसे बैठना, क्या करना। कुछ सामने डॉक्टर बैठे तो कुछ पूछ रहे, नो नो एनी ऐसी स्टेट, मेंटल स्टेट कुछ भी नहीं थी। टोटली कंफ्यूज एंड हैज reduced awareness of their suffering. Yes, so that's why I select delirium condition. और ऐसी एक केस मैं आपको बताता हूं कि एक पेशेंट था जिसको मतलब कंटिन्यूअस कफ था। उस पेशेंट को एक्यूट कंडीशन ही थी, लेकिन उस पेशेंट को पर्टिकुलरली नाइट में कफ होता था, और इतना कफ होता था, वो जो बाउट आता था वो इतना एग्जॉस्टिंग बाउट था वो पेशेंट के लिए कि वो बाउट्स आने के बाद पेशेंट डायरेक्टली अनकॉन्शियस हो जाता था। सर ने उस कंडीशन में ये रूब्रिक लिया था डेलिरियम कफ विथ एट नाइट। दिस इज द डेलिरियस कंडीशन, आउट ऑफ कंट्रोल, नो सेंस ऑफ एनीथिंग, इज डेलिरियस कंडीशन। जो भी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, दैट इज डेलिरियस। यस। और बाकी जो रूब्रिक लिया था सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, इन सब में तो था नहीं। बाकी सब रूब्रिक जो आपने लिए उसमें किसी में भी बाइपोलर नहीं। तो कौन से रूब्रिक थे आप? वॉमिटिंग फूड इमीडिएटली आफ्टर, इसमें भी बाइपोलर नहीं है। आ रहा ओपन नहीं, मैं तो आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट में आप ये बुला लेता हूँ रजिस्टर। शर्मा मैडम, शर्मा मैडम वो कल के पेशेंट का रजिस्टर भेजिए। सर। हाँ, वो जी। जो पेशेंट था ना, कल रजिस्टर भेजे थे, अश्विनी मैडम ने निकाले थे। ओम पात्रिकर। हाँ, उसका रजिस्टर प्लीज लेके आइए। जी ओके। ओके, सो तो एक केस मैं आपको आज डिस्कस करने वाला था। मैं फोटो भिजवाता हूँ ग्रुप पे, आप फोटो देख लीजिए। आपने कौन से रेपर्टरी से किए? कारा। कारा से किए ना? ओके। तो आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फोटो डाले हैं, आप देख सकते हैं उस फोटो को। यस, डेलिरियम वोमिटिंग विथ, इस रूब्रिक में कौन रेपर्टाइज करेगा? कीजिए। तीन ही रेमेडी है सर। कौन सी?
एक है डोरेफोरा, फिर सेकंड है सिकल कॉर और थर्ड है वाइपेरा, सब एक मार्क्स में। वाइपेरा है ना? है इसमें। यस, delirium vomiting, 3 remedies. देन दूसरा रूब्रिक क्या था? Vomiting, food eating after immediately. हाँ। Vomiting food. Vomiting food eating after immediately. Then mood repulsive food for sensitive criticism. Mood repulsive. Mood repulsive food for. Yes. Then sensitive criticism. हो गया? ओके। सो अब देखिए आप, इसमें एक भी मेडिसिन नहीं है, राइट? अब आप वाइपेरा पे जाइए। वाइपेरा ओनली एक रूब्रिक कवर कर रहा है, डेलिरियम वोमिटिंग हुई। अब आप स्नेक ग्रुप पे आइए। हाँ, तो स्नेक ग्रुप पे आइए। ओके, तो अभी आप
मुझे बताइए कि स्नेक ग्रुप ये बाकी के 3 सिम्टम कवर करता है कि नहीं? दैट इज रिपल्सिव मूड. Repulsive mood is the main symptom of snake group. तो फूड के साथ ही केवल केवल रिपल्सिव मूड बस? नहीं, रिपल्सिव मूड आप किसी भी एरिया में ले सकते हो उसका. नहीं, तो फूड में फूड के केवल साथ भी ले सकते हैं. आपको मालूम है जब स्नेक की एक टेंडेंसी होती है, अगर उसे वो फूड नहीं चाहिए तो वो पूरा निकाल देता है, ओमिट कर देता है. आपने देखा है कभी? पूरा इजीली निकाल देता है, पूरा ओमिट कर देता है. यस, दिस इज द, जैसे कि अगर हम अदर जो एनिमल्स है उनको देखेंगे और स्नेक को देखेंगे तो स्नेक एज इट इज पूरा का पूरा फूड पूरा निकाल देता है, ओमिट कर देता है. देन सेंसिटिविटी होती है स्नेक ग्रुप में. यस, क्रिटिसिज्म के लिए भी होता है, रिप्राइमेंट्स के लिए भी होता है. देन ओमिटिंग फूड ईटिंग आफ्टर इमीडिएटली. ये एक स्नेक ऐसा है कि वो इमीडिएटली ये फूड ओमिट कर सकता है. तो जो 3 रूब्रिक लिए वो स्नेक ग्रुप के रूब्रिक्स है. इसीलिए इसमें लैकेसिस कवर करता है 1-2 रूब्रिक, और बाकी के स्नेक ग्रुप के भी मेडिसिन आते हैं. आप अगर देखेंगे उस रूब्रिक में जाके आप देखो कि स्नेक ग्रुप के कौन से रेमेडीज आप उसमें कवर कर रहे हैं. तो ऑल ओवर जो मेन रूब्रिक था उसका दैट इज डेलिरियम ओमिटिंग वे, और जो 3 रूब्रिक्स थे स्नेक ग्रुप का हर मेडिसिन मतलब एक मेडिसिन उसमें कवर करता है. दैट्स व्हाई आई वाज सिलेक्टेड वाइपेरा. और वाइपेरा की एक केस मैं आपको बताता हूं. वो केस थी सिरोसिस ऑफ लीवर की. और सिरोसिस ऑफ लीवर में उस पेशेंट को वराइसिस भी थे. उसमें उसे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा था. ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को कंटिन्यूस वोमिटिंग हो रही थी, कंटिन्यूस पूरी ब्लड की वोमिटिंग. तो उस केस में मैंने वाइपेरा दिया था. मतलब पेशेंट ने सिंपल एक घूंट पानी भी पिया तो पेशेंट कंप्लीटली वो वोमिट कर दे रहा था, और वोमिट ब्लड की होती थी पूरा. मतलब जैसे कुछ भी खाया, जूस लिया, पानी लिया, कुछ फूड खाया, जैसे स्टमक में जाता था पटक से पेशेंट को वोमिटिंग होती थी. और वोमिटिंग प्योर ब्लड की होती थी. फूड तो आता था लेकिन पूरा ब्लड उसमें आ जाता था. मतलब वो पूरा वराइसिस वहां पे रप्चर हो गए थे, पूरे वेन्स वहां पे रप्चर हो गए थे, वेसल्स वहां पे रप्चर होके पूरा कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा था. उसकी वजह से पेशेंट के बीपी कंप्लीटली डाउन हो गई थी, एज भी कंप्लीटली डाउन हो गया था. और वो पेशेंट की एक मतलब डेलीरियस कंडीशन थी. तो उस केस में मैंने डेलीरियम वोमिटिंग विद ये एक रूब्रिक लिया था, और उस पेशेंट को वाइपेरा दिया. पेशेंट की वोमिटिंग कंप्लीटली स्टॉप हो गई थी 3 से 3.5 घंटे में. ब्लड कंप्लीटली स्टॉप हो गया था. तो ये बहुत ही मतलब ऐसे कंडीशन में जो अनकंट्रोल है, मतलब सॉरी थोड़ा ब्रेकडाउन आ रहे हैं. ओके, कंटिन्यू करते हैं. तो जहां कहीं पे भी डेलीरियस कंडीशन है, क्योंकि मोस्टली द स्नेक्स ग्रुप्स एक्ट ऑन द माइंड, हेड. सर हमेशा एक एग्जांपल देते थे कि अगर हेड से कुछ रिलेटेड है तो सबसे पहले आप स्नेक ग्रुप सोचिए, लैक्टिसिस सोचिए. उसके लिए सर ने और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि व्हाई द हेड इज इम्पोर्टेंट, एंड फॉर हेड द स्नेक्स आर इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए सर ने बताया था कि देखो जब भी कुछ हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो स्नेक वहां प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है. तो सर ने बताया था एक सेमिनार में कि जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण को नदी से लेके जा रहे थे तो हेड सर मतलब स्नेक ने वहां प्रोटेक्ट किया था.
और गौतम बुद्ध को भी जब जब वो साधना में थे तो स्नेक ने उनके हेड को प्रोटेक्ट किया था। तो इस तरह से हेड के लिए, माइंड के लिए स्नेक्स इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप। तो ऐसे कंडीशन में जब डिलीरियस कंडीशन आ जाती है तो स्नेक ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कंडीशन। तो ये एक थॉट था उस पेशेंट को इस मेडिसिन सिलेक्ट करने का, और वो सिलेक्शन कितना परफेक्ट था कि पेशेंट नेक्स्ट डे पूरा वोमिटिंग उसका स्टॉप हो गया, उस डेलीरियस कंडीशन से पेशेंट बाहर निकल गया। यस, सो अंडरस्टैंड। यस सर, थैंक यू सर। नाउ एक फोटो आपने देखे ग्रुप पे? हाँ हाँ सर। यस सर। कौन बताएगा क्या कंडीशन है? ये चलाजियन लग रहा है, सिस्ट ऑन लोअर आईलिड। जी, चलाजियन मतलब सिस्ट ऑन लोअर आईलिड, सिस्ट टाइप लग रहा है। हाँ सिस्ट तो है। डॉक्टर उमेश अग्रवाल सर ऑनलाइन है। डॉक्टर उमेश अग्रवाल सर, यस सर। डॉक्टर उमेश अग्रवाल सर, सर अगर आप एक 2 मिनट फ्री है तो आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर, मैंने ग्रुप पे एक पेशेंट हाँ देखा मैंने। देर इज सम ग्रोथ ऑन द लोअर लीड। ग्रोथ है सर वो, यस। हाँ सिस्टिक ग्रोथ है एक्चुअली। हाँ, ऑन द लोअर आई लीड। हाँ, तो सर वो ग्रोथ ऐसी थी कि ऑटोमेटिकली वो आईलिड से बाहर आ जाती थी। जैसे आई बॉल के मूवमेंट होते थे तो वो मतलब एकदम क्या बोलते हैं अपन उसे, म्हणजे प्रोट्रूड होते। प्रोट्रूड होता Protruding था। outside. यस, प्रोट्रूड होता था। और वो हम्म। इतना पेनफुल था कि बाद में वो पेशेंट को फिंगर से उसे अंदर डालना पड़ता था, और दैट वाज वेरी पेनफुल कंडीशन। ओके ओके ओके। हाँ 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 हाँ। तो इस पेशेंट को मैं आपको देता हूं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? नाही, ह्याच्यामध्ये तर अकॉर्डिंग टू द म्हणजे ॲलोपॅथिक नॉलेज पेशंट नीड्स बोलतो एक्सिजन ऑफ द स्वेलिंग. यस यस। तो उस पेशेंट को भी आई स्पेशलिस्ट ने, आई सर्जन ने इमरजेंसी ऑपरेट बोला था, क्योंकि अगर वो उन्होंने कहा कि अगर वो कट हो गया या फिर वहाँ क्रैक आया या फिर वो अंदर नहीं गया तो हो सकता है वहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो और आई साइट को भी कुछ इंज्योर्ड हो सकता है। तो मैं सभी को डॉक्टर उमेश अग्रवाल सर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सर एक सिविल सर्जन हैं। सर का अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है और हमारा गुड लक है कि सर हमारे ग्रुप में है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। I am very happy to be associated with this association and especially with you. थैंक यू सर, थैंक यू। यस, तो हाँ उससे सर ब्लीडिंग भी होता था। पेशेंट जब उसे अंदर प्लेस करता था उस सिस्ट को, तो तब काफी ब्लीडिंग उससे होता था पेशेंट को। तुम्ही ह्याच्यावर केस आता पुढे करणार आहात का रुब्रिक्स घेऊन? सर ही केस सॉल्व्ह झाली। नाही पण आता ते डिस्कस करणार आहात का तुम्ही? नाही, जस्ट फक्त मी सांगणारच होते या केस। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हा, डिस्कस नाही करणार आहे पुन्हा। ओके ओके. तर मी त्या पेशंटचे क्युअर मतलब 90% क्युअर झालेले फोटो तुम्हाला ग्रुपवर टाकतोय।
ॲक्चुअली एका महिन्यानंतर 1 मंथ बिफोर मतलब 27 जनवरी को ये पेशेंट आया, उसके बाद कल उसका सेकंड फॉलोअप था। तो जब मैंने सेकंड फॉलोअप देखा तो इट इज 90% क्योर्ड। यस, फोटो। सो तो इस पेशेंट को एक्चुअली इसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस कंडीशन का? Don't want to see something. डोंट वांट टू सी, लेकिन यहाँ Something. विजन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। विजन के साथ कुछ भी नहीं है। eyelids for protection, eye protection, eye protection का काम करता राइट है आई है eyelid. ना, राइट आई है, राइट आई। Husband fear, की fear, बात sir, चुभ fear. रही है। यस, Anger और वहां पे insecurity. ग्रोथ है, चुभ रही है। ग्रोथ है ना, सिस्टिक ग्रोथ है, दैट इज फियर। Insecurity. Insecurity. और ब्लीडिंग पेनफुल है, दैट इज एंगर। Anger. 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 सो एंगर और फियर, राइट? यस। सो ये एक्यूट केस थी एक्चुअली। कुछ मेरे पास पेशेंट आया 27 जनवरी को, तो 15 दिन पहले उसे ये अपीयर हुआ, ये ग्रोथ 15 दिन पहले ही अपीयर हुई थी। तो उसका जो भी हमें यहाँ पे रूब्रिक लेना है, दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर वेक्जेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर वेक्जेशन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम फियर। तो ये एंगर वेक्जेशन था, राइट आई है, इसलिए किसके रिलेटेड हो सकता है? हस्बैंड से रिलेटेड, Husband. राइट? सो एंगर एंड फियर अबाउट हस्बैंड। सो दो रूब्रिक, एलिमेंट फ्रॉम एंगर एंड फियर। देन वहां पे अभी हमें ये इस ग्रोथ को वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि ग्रोथ को स्टॉप करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, क्योंकि आई सर्जन ने जो इमरजेंसी उसे कट करने का जो डिसीजन दिया, बिकॉज ऑफ सीवियर ब्लीडिंग होके कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करना है, ग्रोथ को स्टॉप करना है। सो क्या रूब्रिक लेंगे? तो एक रूब्रिक है ट्यूमर लीड्स सिस्टिक, बहुत ही अच्छा रूब्रिक। आई में ट्यूमर लीड्स सिस्टिक, देखो ट्यूमर है लेकिन सिस्टिक। देन ट्यूमर हार्ड, ट्यूमर हार्ड सिस्टिक, ये दूसरा रूब्रिक। एंड हेमोरेजिक सिस्ट, and the medicine was only one, that is Calcria. बट कल्क्रिया इतनी सीवियर कंडीशन, एक्यूट सीवियर कंडीशन कवर करती है क्या? और स्लो पेशेंट, एक्टिंग है सबके, यस कल्किया स्लो एक्टिंग है. yes, because the patient was hot, thirsty and profuse perspiration, right sided. So I was selected Calcria floor because of bleeding tendency. So destructiveness comes in fluorid Calcria floor. So I gave her Calcria floor 200 single dose, and within a 1 month he was cured. So this is जो तो अभी जैसा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि
वाइपेरा वो पूरे रूब्रिक्स कवर नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी के रूब्रिक्स नेक ग्रुप कवर कर रहा है। उसी तरह से अभी देखिए कि कल्क्रिया फ्लोर रेपर्टराइजेशन में आया, लेकिन हमने कल्क्रिया ग्रुप में जाके कल्क्रिया मेडिसिन रेपर्टराइजेशन में आई, कल्क्रिया फ्लोर नहीं आया, लेकिन हमने कल्क्रिया ग्रुप में जाके वो मेडिसिन उसे दी। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा अभी कि डिफेंस मैकेनिज्म मतलब मायाजम कंप्लीटली कवर होना चाहिए, और अगर सिंगल रेमेडी आई है कल, जैसे कि कोई भी रेमेडी सिंगल आई है, तो अगर वो रेमेडी कवर नहीं कर रही, वो रेमेडी वो डिफेंस प्रोसेस कवर नहीं कर रही, मायाजम कवर नहीं कर रही, तो हमें अगर उस ग्रुप की मेडिसिन मिलती है उसी मायाजम की, तो हम उसे दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल था, इसीलिए मैंने यहाँ बताना चाहा। यस, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? यस। तो अभी अगर सर फिर कैलकिरिया सल्फ क्यों नहीं कल फ्लोर दिया आपने ना, इसलिए इंडिफरेंट नहीं, हो गई रहेगी। हाँ, कल्क्रिया सल्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि कल्क्रिया सल्फ मोस्ट हॉटी है, साइकोटिक है। यहाँ पे कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी, सिपिलिटिक हो रहे थे, मतलब ऑटोमेटिकली वो प्रोट्रूड होता था, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल में नहीं था आई के, इसलिए वो मोस्ट सिपिलिटिक होते जा रहा था, इसलिए हमें सिपिलिटिक वहां पे कंसिडर करना जरूरी है। और कल्क्रिया फ्लोर आप देखेंगे तो मोस्ट साइकोटिक रेमेडी, कल्क्रिया सल्फ। यस सर ओके, थैंक यू सर। या, थैंक यू। और कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन नहीं तो हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो थैंक यू। कल फिर 4 बजे नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। Thank you, sir. या, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. प्रकल्प एक प्रकल्प आहे का होती. होती